nucleus is called nuclear physics, and Rutherford was the discoverer of the nucleus. Rutherford was the discoverer of the nucleus, and constituent of nucleus is nothing but proton and neutron, which is collectively called nucleons. Proton plus neutron are collectively called nucleons. Constituent है proton plus neutron, and Rutherford was present at the nucleus. A proton has mass which is approximately equal to mass of the nucleus. The mass of the and I think proton was discovered by the Goldstein था, इस तरह था, I think so. ये इसके कुछ पैरामीटर, the first one is the total charge on nucleus. न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे? सो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, इसको निकालने के लिए हम पहले एक और चीज को स्टडी करते हैं. आप इसको वन खैर ना दे तो यहां से मैं आपको बताता हूं. मास नंबर which is represented by A, and A is nothing but proton plus neutron is called mass number. Proton plus neutron is called what शाबाश? mass number. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर वो क्या बनाते हैं? मैस नंबर बनाते हैं. इस तरह से हमारे साथ होता है चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर which is represented by Z, and Z is nothing but the number of proton is called Z. The number of proton is called Z. So hence हम लिख सकते हैं कि mass number is equal to Z की जगह हम प्रोटॉन की जगह हम Z लगा सकते हैं. Z plus N is called mass number. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और हम न्यूट्रॉन से लिख सकते हैं कि A minus Z is nothing but V plus. क्या ये जरूरी है? और 1H1 प्रोटियम, सिंपल हाइड्रोजन प्रोटियम, न्यूट्रॉन should be equal to A minus Z, यानी 1 minus 1 which is equal to 0. There is no neutron in the simple protium. इस यूरेनियम 92 235 में if you find out the neutron, so 235 minus 92 is 1, yes, and that is we can say 3 and 4, 143. ये मेरे साथ इसमें क्या है? न्यूट्रॉन है. सो न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस में हो भी सकता है, लेकिन सिंपल जो प्रोटियम है total charge on nucleus is equal to total charge on proton. Total charge on proton जितने हैं
प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? टोटल प्रोटॉन को Z से, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो E है. सो दिस इज वी कैन से द टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन. द टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन Z into E. That is Z into E. Q is equal to ZE. Hence, we can say that the total charge exists will be equal to the, we can say the proton multiplied by the charge on single proton. This is the total charge. We can say nucleus. अच्छा, जरा आप मुझे एक बात बताइए, किसी न्यूक्लियस का मास को हम कैसे निकाल सकते हैं? शाबाश, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस. टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस. तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस को हम ऐसे लिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, mass of the number of neutron plus the number of proton. तो प्रोटॉन तादाद में कितने होते हैं? Z होता है, और एक का क्या होता है? MP होता है. न्यूट्रॉन तादाद में कितने हैं? न्यूट्रॉन तादाद में इतने हैं. तो वो क्या होगा शाबाश? प्लस A माइनस Z इंटू mass ऑफ न्यूट्रॉन. ये मेरे साथ क्या है? टोटल न्यूक्लियस है. इस तरह से बेटा हमारे साथ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो हमारे साथ R is equal R naught and A power 1/3, and R naught is 1.2 और -15 मीटर या 1.2 femto. बस आप ऐसे लिखते हैं femto. This is R naught. So another thing that we want to discuss over here is the fifth one is the density of nucleus. ये सारे के सारे न्यूक्लियस के पैरामीटर. Density is equal to mass per unit volume, and mass divided by volume वो ये होता है, वॉल्यूम इज 4/3 5r³. यहां से अगर आप देखिए बेटा, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास. सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर वो क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं कि नहीं? तो ये मेरे साथ बन गया A इंटू M, एंड मास ऑफ प्रोटॉन. यहां से क्या बन गया? 4/3 5. R की जगह ये चीज लगाओ शाबाश. यहां से क्या बनेगा? R0³ एंड साथ में बनेगा A. A will cancel
A. In simple beta, you should must just remember that is this is equal to 2.3 into 10 raised to the power 17 kilogram per meter cube. The more massive thing in the universe, the more massive thing in the universe is what is that we can say the density of the nucleus. बहुत ज्यादा डेंसर है, बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंसर है. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये बेटा हमारे साथ कुछ पैरामीटर्स थी कि आपको पता चले कि हमारे साथ वी कैन से बेटा मैस क्या होगा, चार्ज क्या होते हैं न्यूक्लियस पर, एंड डेंसिटी वगैरह क्या होते हैं. ये डेंसिटी को आप लोगों ने याद रखना है. ये इसके साथ रिलेटेड बातें थी. इसके बाद फिर हमारे साथ एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार. सो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स होते हैं. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element. Atoms of same element are called isotopes, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. एंड जब इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज. जितने भी आइसोटोप्स हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम. और डिफरेंट इसकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी. डिफरेंट इसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. इस तरह आइसोबार में जिस तरह यहां पे हम देखते हैं, इस तरह कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, इस तरह 4 आइसोटोप है. क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, हाइड्रोजन वगैरह. आइसोबार में क्या होते हैं, आइसोबार में वी कैन से सेम कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी पीपी होती है. और डिफरेंट क्या होती है, शाबाश, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. डिफरेंट क्या होती है, शाबाश, केमिकल प्रॉपर्टी यानी सीपी होती है. और यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइसोबार हमारे साथ ऐसे एटम्स होते हैं जिसका मैस क्या होता है, शाबाश, वी कैन से सेम होता है, लेकिन हमारे साथ इसकी जो चार्ज नंबर होती है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. जिस तरह आप कार्बन की एक आइसोटोप्स को अगर आप उठाइए तो ये 14 एंड 6 एंड हमारे साथ इस तरह है नाइट्रोजन 7 एंड 14. सो ये भी एक किस्म से एक दूसरे की क्या है, आइसोबार है. और इसके साथ वी कैन से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं आइसोटोन. आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मुरादी है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखिए ऑक्सीजन वी कैन से 8 एंड 16 है, तो न्यूट्रॉन यहां पे कितने हैं, शाबाश, वी कैन से 8 है. इस तरह से अगर आप यहाँ पे कार्बन 14 को देखें, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे भी क्या कितने होते हैं, वी कैन से 8 होते हैं. तो ये वी कैन से आइसोटोन्स हैं. बेटा दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियर फिजिक्स. इंशाल्लाह मंडे के दिन फिर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे.